Hello children, this is Poonam Bagga welcoming you in your maths class with chapter 12 exponents and powers from class 8th maths. In our previous video we learnt about powers with negative exponents, we learnt how to convert those negative exponents into positive ones, and also we learnt to apply the laws of exponents in case of negative exponents. Now today we are going to do exercise 12.1 based on this discussion. I hope you have tried these questions once, and not only tried, you have done those questions correctly, and now here you are simply going to verify your answers. We have the first one, evaluate 3 raised to power minus 2. By this word evaluate we mean that we will have to find the final value. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर को नहीं छोड़ना है, उसकी फाइनल वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. द फर्स्ट वन इज 3 raised to power minus 2. Here the exponent is negative and we will be converting it into positive 1. For this we will take it in the denominator. 3 को हम लिख लेंगे 1/3 और यहाँ पावर हो जाएगी +2. तो जब भी हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट हो उसे हम यहाँ पर डिनोमिनेटर में ले आएंगे, न्यूमरेटर में 1 लेंगे और नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगा. विद दिस वी गेट इट इक्वल टू 1/3 into 3. 3 raised to power 2 is 3 into 3, and so this is equal to 1/9. This is the answer. So simple, so easy. Next we have -4 raised to power minus 2. Again the exponent is negative, तो इसके लिए हम इसे डिनोमिनेटर में लाएंगे जिससे एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया, न्यूमरेटर में 1 रहेगा. दिस विल बी इक्वल टू 1/, नाउ -4 into -4. पावर 2 है तो 2 बार मल्टीप्लाई होगा अपने आप से ही. दिस विल बी इक्वल टू 1/, माइनस विल बी प्लस, 4 4s are 16, and this is the final value. Next, 1/2 raised to power -5. Now here to find the value we will first take the reciprocal of the base and then the power will be converted into positive exponent. So this will now become 2/1 raised to power 5, and 2/1 means 2 itself. 2 raised to power 5, this means 2 into 2 into 2 into 2, here 5 times, and so this will be equal to 32, and this is the final answer. You can multiply 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. Next we have question 2. Simplify and express the result in power notation with positive exponent. पावर नोटेशन में ही आंसर देना है, फाइनल वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी है, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही आंसर देना है. फर्स्ट वन इज -4 raised to power 5 डिवाइडेड बाय -4 raised to power 8. अब आप देखिए यहाँ पर बेस सेम है, -4 और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं और डिवीजन हो रहा है, तो आप अप्लाई कीजिए सेकेंड लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, और ऐसे केस में ये जो एक्सपोनेंट्स हैं ये सब्ट्रैक्ट होंगे. वी विल राइट हियर द बेस विल बी -4 and this will be 5 -8. Give the reason. Since a raised to power m divided by a raised to power n, this is equal to a raised to power m minus n. This can be written as -4 raised to power -3. देखिए आप 5 - 8 इट्स -3. अभी यहाँ पर पॉजिटिव एक्सपोनेंट नहीं आया है, हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट चाहिए और पावर नोटेशन तो चाहिए ही. बताइए अब पॉजिटिव एक्सपोनेंट कैसे मिलेगा. हियर वी विल टेक इट टू द डिनोमिनेटर, -4 raised to power 3, और न्यूमरेटर में हम लिखेंगे 1, एंड नाउ दिस इज एन एक्सप्रेशन इन पावर नोटेशन एंड ऑल्सो विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. देखिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट आ गया, एंड सो दिस इज द फाइनल आंसर हियर. Next we take here 1/2 cube whole square, or we can say 1/2 raised to power 3 and whole raised to power 2. This we can write here 1/2 raised to power 3 and whole raised to power 2. This can be written as 1 raised to power 2 upon 2 raised to power 3 and then whole raised to power 2. यहाँ हमने जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उन पर अलग अलग से ये कॉमन पावर 2 को लगा दिया है. We can write here the reason. Since a upon b raised to power m whole raised to power m, this is equal to a raised to power m upon b raised to power m. Because of this law we can write here this form, and now we have 1 square is 1 and this is 2 raised to power 3 into 2. अब एक ही नंबर पर दो अलग अलग पावर्स हों तो वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं, so this will be 1/2 raised to power 6. You can again give the reason.
since a raised to power m whole raised to power n, this is equal to a raised to power m n. m and n get multiplied and so here we have 1 by 2 raised to power 6. फिर से ये पावर नोटेशन है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में ही हमें आंसर लिखना है. दिस इज द आंसर. नेक्स्ट वी हैव हियर माइनस 3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 बाई 3 होल रेज टू पावर 4. फिर से आप यहाँ देखिए, इधर तो है 3 और इधर है -3, तो हम यहाँ भी 3 लाना चाहते हैं. तो -3 को इसके फैक्टर्स में ब्रेक कर देंगे -1 और 3 में, और ऐसे में हमें देखिए क्या मिलेगा. हियर वी हैव -3 रेज टू पावर 4 इंटू 5 बाई 3 होल रेज टू पावर 4. इसको हम लिख सकते हैं -1 इंटू 3 होल रेज टू पावर 4, and this one can be written as 5 raised to power 4 upon 3 raised to power 4. Give the reason for each step that you write. You will write here, since a upon b whole raised to power m, this is equal to a raised to power m upon b raised to power m. a upon b हो और whole पर पावर m हो तो दोनों ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पर हम अलग अलग पावर m को लिख सकते हैं. By this law we have written this one as this one. ठीक है, यहाँ 5 बाई 3 होल रेज टू पावर 4 को हमने 5 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4 लिख दिया है. फ्रॉम हियर वी विल राइट -1 रेज टू पावर 4 इंटू 3 रेज टू पावर 4. अब ये जो कॉमन पावर थी 4 इन दोनों नंबर्स पर, इन दोनों पर अलग अलग लिख दी है, एंड दिस विल बी 5 रेज टू पावर 4 अपॉन 3 रेज टू पावर 4. अगेन गिव द रीजन, सिंस a इंटू बी होल रेज टू पावर m, दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू b रेज टू पावर m. इस लॉ से हमने यहाँ जो ये a इंटू बी हो रहा था, ये a इंटू बी हो रहा था होल रेज टू पावर 4, ये a रेज टू पावर 4 कर दिया, ये b रेज टू पावर 4 कर दिया. वही लॉ अप्लाई किया है. आई होप यू कैन इजीली कनेक्ट. नेक्स्ट वी हैव हियर नाउ दिस 3 रेज टू पावर 4 एंड 3 रेज टू पावर 4, दीज टू विल बी कैंसल्ड. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम एक्सप्रेशंस कैंसिल हो सकते हैं. देन -1 रेज टू पावर 4 इट इज़ इक्वल टू 1, क्योंकि -1 पर जब भी इवन इंटीजर हो पावर फॉर्म में, दिस इज इक्वल टू 1, और ये इवन है 4, सो दिस विल बी 1 एंड दिस इज 1 इंटू 5 raised to power 4, or simply we can write it as 5 raised to power 4. Now again just go to the question what has been said. We were asked to write the answer in power notation with positive exponent. तो वही हमने किया है. देखिए यहाँ पर power notation है और positive exponent है. So this is the answer, final answer. We will not find its value. Next we take here फोर्थ पार्ट, 3 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -10. तो अभी पहले हम ये ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट सॉल्व करेंगे और बाद में ये बाहर वाले को भी कंसिडर करेंगे. वी टेक हियर दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर -10 एंड इनटू 3 रेज टू पावर -5. तो अब बताइए, यहाँ पर आप देखेंगे बेस सेम है 3 और 3, डिवीजन हो रहा है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट है, तो एक्सपोनेंट्स यहाँ पर माइनस करेंगे. वी विल गेट हियर 3 रेज टू पावर -7 माइनस -10 इंटू 3 रेज टू पावर -5. गिव द रीजन, सिंस a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, दिस इज इक्वल टू a रेज टू पावर m माइनस n. दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर -7 minus will become plus and 10. Here we have 3 raised to power -5. ठीक है, पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व किया और ये बाहर वाला एज इट इज़ लिखते जा रहे हैं. नाउ -7 प्लस 10, दिस विल बी इक्वल टू 3 raised to power 3. 10 - 7 इट्स 3, और बड़े नंबर का साइन आता है तो 3 raised to power 3 इंटू 3 raised to power -5. अब फिर से आप देखेंगे कि बेस तो सेम है लेकिन पार्ट्स अलग अलग हैं और बीच में है मल्टीप्लाई साइन. सो दिस टाइम वी विल बी एडिंग द एक्सपोनेंट्स बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड दिस विल बी इक्वल टू 3 raised to power 3 प्लस -5. गिव द रीजन, सिंस a raised to power m into a raised to power n is equal to a raised to power m plus n. Because of this law we can write this way. This will be equal to 3 raised to power 3 or plus minus gives us -5. This will be equal to 3 raised to power -2.
अभी यहाँ पर एक्सपोनेंट नेगेटिव है और हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में आंसर लिखना है. सो दिस विल बी इक्वल टू 1/3 स्क्वायर. ठीक है, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट यहाँ आकर पॉजिटिव हो गया. और फिर से अब याद कीजिए, हमें यहाँ पर आंसर किस में लिखना था, पावर नोटेशन में और पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में. तो फाइनल आंसर हम नहीं लिखेंगे और यहीं पर आंसर छोड़ देंगे. वैसे तो आप देख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू 1/9, लेकिन हमसे ये फाइंड आउट करने को नहीं कहा गया है, सिर्फ ये कहा गया है कि एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखना है और वो भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट में. ओके, नेक्स्ट वी टेक हियर 2 raised to power -3 इंटू -7 raised to power -3. अब इस बार आप देखिए कौन सा लॉ अप्लाई होता दिख रहा है, सोचिए ज़रा. आप देखेंगे बेस तो डिफरेंट है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है. तो ऐसे में हम जो ये सेम एक्सपोनेंट है इसको कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा 2 इंटू -7. ये क्लियर हुआ. जो कॉमन एक्सपोनेंट है वो बाहर ले लिया, सेम है जो, और ऐसे में अंदर हमें मिलेगा 2 इंटू -7. दिस विल बी इक्वल टू -14 raised to power -3. यहाँ पर आप स्टेप लिख सकते हैं. Since a raised to power m into b raised to power m, this can be written as a into b whole raised to power m. ठीक है, जो पहले अलग अलग थे, पावर्स कॉमन थी, उनको अब एक साथ हमने लिख लिया और एक ही बार पावर लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट हियर वी हैव द नेगेटिव एक्सपोनेंट और इसे हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखना है. और वो कब पॉजिटिव होगी, जब हम इसे डिनोमिनेटर में ले आएंगे. सो 1/-14 whole raised to power 3. With this we have the answer in power notation with positive exponent. So this is the answer. Next we have question 3. Find the value of 3 raised to power 0 plus 4 raised to power -1. Let me write here 3 raised to power 0 plus 4 raised to power -1 into 2 square. इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब आप बताइए 3 raised to power 0, its value will be 1. Yes, for any non-zero number raised to power 0, its value is always equal to 1. So here we will have 1. फिर अब आप देखिए 4 raised to power -1, ये नेगेटिव एक्सपोनेंट है, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए और यहाँ पावर पॉजिटिव हो गई. सो 1/4 and here we have 2 square. Give the reason since a raised to power 0 is equal to 1. And so here what we have, this will be equal to 1 plus 1/4. 4 raised to power 1 is nothing but 4 itself, and so into 2 square it is 4. Again 4 into 1 it will be 4. 4 ones are 4 plus 1 it will become 5/4. ये समझ रहे हैं ना आप, या आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करके लिख लेते हैं. 4 ones are 4 plus 1/4 into 4 we have. This will be 5/4 into 4. Cancel this 4/4 and the answer is 5. This is the answer. We had to find the value and this is the value. Okay, it was an easy one, simple था. यहाँ पर हमने ये रूल यूज़ किया, a raised to power 0 is 1, so this is 1. 4 raised to power -1 है तो ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट हो जाएगा by taking the reciprocal, और फिर ये 2 square is 4. सिंपल कैलकुलेशन है, आंसर मिल गया है. नेक्स्ट वी हैव दिस वन. हियर अगेन वी हैव द नेगेटिव एक्सपोनेंट्स. तो पहले हम इनको पॉजिटिव करते हैं और फिर सॉल्व करेंगे. दिस वन कैन बी रिटन एज 2 raised to power -1 इंटू 4 raised to power -1 डिवाइडेड बाय 2 raised to power -2. तो ये हम लिख लेंगे 1/2 raised to power +1, और +1 लिखने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज 2 raised to power 1 itself means 2 only. So this gives us 1/2 here. Then this one 1/4 raised to power 1, और 4 raised to power 1 का मतलब 4 ही हुआ तो ऐसे ही लिखेंगे हम. And this here we have 1/2 raised to power 2. नेगेटिव एक्सपोनेंट अब पॉजिटिव हो गया इस तरह से रेसिप्रोकल लेने के बाद. नाउ दिस विल बी 1 1 1, 2 4 8. ये तो अंदर आ गया. Divided by, here we have 1/2 square, this is 4. This is 1/8 divided by 1/4. डिवीजन कैसे करते हैं आपको याद होगा, 1/8 तो ऐसे ही रहेगा. डिवीजन की जगह मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये जो सेकेंड एक्सप्रेशन है आफ्टर द डिवीजन इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे. दिस विल बी 4/1. नाउ कैंसिल 4 1s 4 2s,
this is equal to 1/2 and so the answer is 1/2 answer. Okay, next we have here this one. फिर से यहाँ पर जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं इनको हम पॉजिटिव करेंगे. देखिए 1/2 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/3 होल रेज टू पावर -2 प्लस 1/4 होल रेज टू पावर -2. नाउ हाउ टू कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एक्सपोनेंट. ये जो अंदर नंबर्स हैं इनका रेसिप्रोकल ले लेंगे. 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 2/1 और 2/1 सिंपली मीन्स 2. सो 2 रेज टू पावर 2. ऐसे में रेसिप्रोकल लेते ही ये नेगेटिव एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गया. 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 और 3/1 इटसेल्फ मीन्स 3 एंड सो 3 रेज टू पावर 2. और फिर 1/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/1. 4/1 मीन्स 4 इटसेल्फ एंड 4 स्क्वायर. ये समझते ही आप कि 4/1 इज इक्वल टू 4. 3/1 दिस मीन्स 3. 2/1 दिस मीन्स 2 इटसेल्फ. ठीक है, तो रेसिप्रोकल के बाद हमने डायरेक्टली ही ये नंबर्स लिख दिए हैं. नाउ 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2 इट्स 4. 3 स्क्वायर इज 9 and 4 square is 16. Here we have 16 plus 9 25 plus 4 it's 29 and this is the final value. I hope it's clear and well understood. It was an easy one. Next we take here this part. Here we have 3 raised to power -1 plus 4 raised to power -1 plus 5 raised to power -1 whole raised to power 0. और अब अंदर चाहे जो भी एक्सप्रेशन हो, बाहर जो पावर है वो है 0 और हमें पता है किसी भी नॉन ज़ीरो नंबर पर अगर पावर 0 हो उसकी वैल्यू होती है 1. सो हियर स्ट्रेट अवे नीड नॉट टू सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन इनसाइड द ब्रैकेट. इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे ही हम आंसर लिखेंगे 1 एंड गिव द रीज़न सिंस a raised to power 0 is equal to 1 for any non-zero integer a. For any non-zero integer a raised to power 0 is always equal to 1. तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए a raised to power 0 है और इसकी वैल्यू हो गई 1. Easy है. Next we take here this one. Here we have -2/3 होल रेज टू पावर -2. पहले तो -2/3 पर पावर है -2 और फिर इसके ऊपर भी एक और पावर है 2. सो हियर फर्स्ट वी विल कन्वर्ट दिस इनर नेगेटिव एक्सपोनेंट इनटू पॉजिटिव वन. ये जो अंदर हम देख रहे हैं नेगेटिव एक्सपोनेंट -2, इसको पहले हम पॉजिटिव करेंगे. कैसे? यहाँ ये जो एक्सप्रेशन है इसका रेसिप्रोकल लेके, तो ये हो जाएगा आपका -3/2 और फिर यहाँ पर ये नेगेटिव से पॉजिटिव एक्सपोनेंट और फिर बाहर आपका ये हो गया 2. ये तो समझ में आ रहा है. यहाँ पर रेसिप्रोकल लिया. यू कैन गिव द रीज़न सिंस हियर वी हैव a/b रेज टू पावर -m दिस इज इक्वल टू b/a रेज टू पावर +m. ये रीज़न आप दे सकते हैं जिससे ये इनर एक्सप्रेशन की एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो गई. अब एक ही एक्सप्रेशन पे दो अलग अलग पावर्स हैं तो ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. -3/2 whole raised to power 2 into 2. Give the reason. Since a raised to power m whole raised to power n this is equal to a raised to power m into n. और यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो गई दोनों पावर्स 2 और 2. दिस विल बी इक्वल टू -3/2 whole raised to power 4. बात आ रही है समझ में? अब ये क्या हो गया? -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2. जब यहाँ नेगेटिव नंबर्स हों तो उनको ब्रैकेट के अंदर एनक्लोज कीजिए. वी डोंट राइट टू साइंस टुगेदर एंड सो दिस वन नाउ विल बी इक्वल टू, देखिए माइनस कितनी बार आ रहा है? 4 टाइम्स, तो ये प्लस हो जाएगा. इवन टाइम्स आ रहा है माइनस. एंड हियर वी हैव 3 3s are 9, 3s are 27 इंटू 3 it's 81 and here we have 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16. So 81/16 this is the value, the answer. ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया देखिए, ये जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पहले हमने पॉजिटिव किया बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल ऑफ दिस एक्सप्रेशन. -2/3 के लिए हम
ले सकते थे, 3/-2 भी ले सकते थे, और माइनस को हम न्यूमरेटर में ही रखते हैं, ये कॉमन प्रैक्टिस है, तो ये हम लिखेंगे -3/2 एंड देन होल स्क्वायर एंड देन अगेन वी हैव होल पावर 2. बस अब ये पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, 2 into 2. With this here we have -3/2 raised to power 4, and with this after multiplying 4 times we get the final answer. Next we have question 4. Evaluate. Again we have to find the value. 8 raised to power -1, 8 raised to power -1 into 5 raised to power 3 upon 2 raised to power -4. जब भी इस तरह से हो तो पहला स्टेप हमें ये करना चाहिए, जो नेगेटिव पार्ट्स हैं उनको पॉजिटिव करते हैं. वी कैन राइट इट हियर. देखिए 2 raised to power -4 है, नेगेटिव है, नीचे डिनोमिनेटर में है, तो इसको ऊपर ले आइए, ये पॉजिटिव हो जाएगी. जो नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली टर्म ऊपर है उसको नीचे ले आइए, वो पॉजिटिव हो जाएगी. जो नेगेटिव एक्सपोनेंट वाली टर्म डिनोमिनेटर में है उसे न्यूमरेटर में ले जाइए, उसकी एक्सपोनेंट पॉजिटिव हो जाएगी. तो इसे हम लिख सकते हैं 2 raised to power 4 इंटू 5 raised to power 3 और 8 raised to power 1, या 1 को ना भी लिखें तो भी ये चलेगा. 8 raised to power 1 मीन्स 8 itself. तो इस तरह से हमने इंटरचेंज कर ली ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाली पोजीशंस को, और ऐसे में आप देखेंगे ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया ऊपर आके, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया नीचे आके. अब इसको आप देखिए, आप यहाँ से 8 को ब्रेकअप कर सकते हैं 2 raised to power 3. एक स्टेप तो ये है कि आप 8 को ब्रेकअप कर लीजिए और फिर यहाँ से 2 raised to power 4, 2 raised to power 3 और यहाँ 5 raised to power 3 हो गया. ये आप कर सकते हैं सिंस 8 is equal to 2 raised to power 3. और फिर यहाँ से 2 raised to power 4 minus 3 हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन हो रहा है, एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 raised to power 3, this will be equal to 2 raised to power 1 into 5 raised to power 3. इस तरह से आप चल सकते हैं बिल्कुल. ठीक है, यहाँ पर 4 minus 3 पावर 1 हो गई. दिस इज़ 2 into 5 cube is 125, and if you multiply by 2 it will go here and we will get 250 as the answer. एक तरीका तो यहाँ से ऐसे चलने का है, या फिर इसके बाद आप ऐसे भी चल सकते हैं 2 raised to power 4. ये कितना होता है? It is equal to 16. 16 into 5 cube upon 8. ऐसे भी आप कर सकते हैं. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. और यहाँ से आप 8 से 16 को 2 टाइम्स कैंसिल कर लीजिए. 2 into 5 cube, this is equal to 2 into 125. This is equal to 250. ये वही आंसर आ गया है. तो यहाँ से आप इन दो तरीक़ों से स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे उसको फॉलो कर लीजिए. दोनों ही बिल्कुल सही हैं. यहाँ हमने 8 को इस तरह से प्राइम फैक्टर 2 के फॉर्म में लिख दिया, 2 क्यूब, और फिर यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई किया. डिवीजन हो रहा है तो माइनस कर दिए एक्सपोनेंट्स और फिर आंसर मिला. यहाँ पर हमने 2 raised to power 4 की वैल्यू लिख ली और फिर सॉल्व करके आंसर ले लिया. दोनों ही सही है. आप दोनों में से एक ही करिएगा, दोनों मत करिएगा, एक करिए जो भी आपको अच्छा लगे. नेक्स्ट वी हैव हियर सेकेंड पार्ट. हियर अगेन फर्स्ट वी विल राइट द एक्सप्रेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स. 5 raised to power -1 into 2 raised to power -1 into 6 raised to power -1. देखिए नेगेटिव एक्सपोनेंट है तो इसका रेसिप्रोकल लेंगे 1/5 और पावर 1 हो जाएगी. अब 5 raised to power 1 इज़ नथिंग बट 5 itself, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है. दिस विल बी 1/5. दिस वे दिस विल बी 1/2 और इसको क्या लिखेंगे 1/6. पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है. 6 raised to power 1 means 6 itself. Now this is simple. This will be 1 upon 5 2s are 10. 1 1s are 1, 5 2s are 10. Here we have 1/6. Again 1 1s are 1 and 6 10s are 60. बस ये आंसर आ गया कितनी जल्दी और easily. Here we have question 5 now. Find the value of m for which 5 raised to power m divided by 5 raised to power -3, 5 raised to power m divided by 5 raised to power -3 is equal to 5 raised to power 5. अब आप यहाँ LHS वाले एक्सप्रेशन में देखिए 5 is the base in both the cases. बेस सेम है और एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, डिवीजन हो रहा है तो यहाँ पर लॉ अप्लाई करेंगे और एक्सपोनेंट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 5 raised to power m minus
-3, दिस विल बी इक्वल टू 5 रेज टू पावर 5, ये इसके इक्वल दिया गया है क्वेश्चन में. You can give the reason since a raised to power m divided by a raised to power n is equal to a raised to power m minus n. From here we get 5 raised to power m minus plus 3 equal to 5 raised to power 5. अब आप देखिए दोनों एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, इनके बेस इक्वल हैं, सेम हैं, तो इसका मतलब इनके एक्सपोनेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे. वी राइट हियर कंपेयरिंग the exponents on both sides, we get from here m plus 3, this is equal to 5. देखिए यहाँ पर है m plus 3, ये तो है m plus 3 और ये है 5, बेस सेम है, एक्सप्रेशंस इक्वल हैं, तो इनके एक्सपोनेंट्स भी इक्वल होंगे. वही हमने किया है, m plus 3 equal to 5. Now here we can get m equal to 5 minus 3 और m is equal to 2. This is the answer. m की वैल्यू ही पूछी थी और m की वैल्यू आ गई 2. Okay. Next we have question 6. Evaluate. Again here we have to find the final value. अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही आंसर को नहीं छोड़ना है, इसकी पूरी वैल्यू भी निकालनी है. What we see 1/3 whole raised to power -1 minus 1/4 whole raised to power -1 and then we have again whole raised to power -1. अब पहले ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्सप्रेशंस हैं, इनकी पावर्स या एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करते हैं. कैसे करेंगे? ये जो 1/3 है इसका रेसिप्रोकल लीजिए, इससे जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव बन जाएगा. तो यहाँ पर देखिए 1/3 है, इसका रेसिप्रोकल 3/1 और 3/1 को हम सिंपली 3 लिखेंगे और ऐसे में इसका एक्सपोनेंट हो जाएगा +1. और यहाँ पर भी 4/1 को हम सिंपली 4 लिखेंगे एक्सप्रेशन और एक्सपोनेंट हो जाएगा 1 एंड देन होल रेज टू पावर -1. ठीक है. नाउ दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर 1 इज 3, 4 रेज टू पावर 1 इज 4 ओनली, होल रेज टू पावर -1, 3 minus 4 इट इज़ -1, होल रेज टू पावर -1. अब आप देखिए यहाँ पर -1 की पावर क्या है? ऑड है, और -1 की पावर जब ऑड हो तो उसकी वैल्यू -1 ही रहती है. सो दिस विल बी इक्वल टू -1 एंड दिस इज़ द आंसर. आप ऐसे देखना चाहें कि इसकी जो एक्सपोनेंट नेगेटिव है इसको पॉजिटिव करना है, रेसिप्रोकल लें अगर हम 1/-1 और ये पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तब भी आप इसको देखेंगे 1/-1 की पावर 1 -1 ही हुआ एंड फाइनली इट इज़ इक्वल टू -1. 1/-1 इट्स -1, माइनस को ऊपर ले लीजिए. तो इस तरह से आंसर कुल मिलाकर -1 ही आएगा. सो दिस इज़ द आंसर. हियर वी हैव सेकेंड पार्ट. अगेन दिस इज़ सिमिलर टू वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट वी डिड. इसको हम लिख सकते हैं 5/8 रेज टू पावर -7. पहले क्वेश्चन ही लिख रहे हैं. 8/5 रेज टू पावर -4. पहले ये नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करते हैं. कैसे करेंगे? रेसिप्रोकल लीजिए. 5/8 कैन बी रिटन एज 8/5 होल रेज टू पावर 7 और ये हो जाएगा आपका 5/8 होल रेज टू पावर 4. नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को हमने पॉजिटिव कर दिया है. इसके बाद आप ये जो 8 है, 5 है, यहाँ से 5 है, 8 है, इनके एक्सपोनेंट्स अलग अलग करके लिखते हैं हम. दिस विल गिव यू 8 रेज टू पावर 7 अपॉन 5 रेज टू पावर 7, 5 raised to power 4 upon 8 raised to power 4. You can give the reason. Since a upon b whole raised to power m is equal to a raised to power m upon b raised to power m. इस रीज़न से हमने यहाँ पर सभी नंबर्स पर अलग अलग पावर्स या एक्सपोनेंट्स लिख दिए हैं. अब यहाँ से 8 वाले आपस में एक साथ लिखेंगे जिनके बेस 8 हैं. 8 रेज टू पावर 7 अपॉन 8 रेज टू पावर 4 और यहाँ से 5 रेज टू पावर 4 अपॉन 5 रेज टू पावर 7. यहाँ पर अब डिवीजन हो रहा है, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स डिफरेंट हैं, तो लॉ अप्लाई करेंगे और ऐसे में ये एक्सपोनेंट्स माइनस होंगे. और यहाँ 5 के केस में आप देखेंगे डिनोमिनेटर में बड़ा एक्सपोनेंट है, तो हम 5 के केस में डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 4.
ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ रही है वो माइनस में होगी, और 7 तो पहले से ही है, नीचे 7 ही रहेगी. हियर यू कैन राइट सिंस a raised to power m upon a raised to power n, this is equal to a raised to power m minus n. Because of this reason we have got this step. Now 8 raised to power 7 minus 4, it's 3, and 5 raised to power again 7 minus 4, it's 3. 8 cube upon 5 cube. 8 cube अगर आपने cubes learn किए हैं it's 512, and 5 cube it's 125, and this is the final value of this expression. ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं इसको हमने कैसे सॉल्व किया. पहले हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव किया बाय टेकिंग द रेसिप्रोकल. इसके बाद हमने सभी इंडिविजुअल टर्म्स में जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे ये एक्सपोनेंट्स अलग अलग अप्लाई किए. 8 वाले बेस वाले टर्म्स एक साथ लिखे, 5 बेस वाली टर्म्स एक साथ लिखी. डिवीजन हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स को माइनस किया और उससे हमें फाइनल आंसर मिल गया. ओके, नेक्स्ट वी टेक क्वेश्चन 7. Here we have the first part, 25 into t raised to power minus 4 upon 5 raised to power minus 3 into 10 into t raised to power minus 8. And remember t is not equal to 0. t क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो वो 0 नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में, और ऐसे में here we have this one. अब यहाँ पर फिर से हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पहले पॉजिटिव करते हैं, उससे डील करना थोड़ा इजी लगता है. सो दिस कैन बी रिटन एज 25 इंटू 5 रेज टू पावर 3 इंटू टी रेज टू पावर 8 अपॉन 10 इंटू टी रेज टू पावर 4. हमने क्या किया, ये 5 रेज टू पावर माइनस 3 था, ऊपर ले गए प्लस 3 हो गया. टी रेज टू पावर माइनस 8 था, ऊपर ले गए प्लस 8 हो गया. ये टी रेज टू पावर माइनस 4 न्यूमरेटर में था, इसको डिनोमिनेटर में ले गए तो ये पॉजिटिव हो गया. ठीक है, अब यहाँ से यू कैन राइट 25 एज 5 स्क्वायर. एक तरीका तो यही है कि आप यहाँ पर 25 को 5 स्क्वायर लें और इधर 10 को भी आप स्प्लिट कर दीजिए 2 इंटू 5. यहाँ आप देखेंगे 25 और 10 ये प्राइम नंबर्स नहीं हैं, इनको आप प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. मैं दो तरीके से यहाँ से बताऊँगी. पहला स्टेप तो ये ले रहे हैं हम, पहला केस जहाँ पर 25 को हम 5 स्क्वायर लिख रहे हैं. ये 5 क्यूब ऑलरेडी है, टी रेज टू पावर 8 पहले ही है, और यहाँ पर 10 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 2 और टी रेज टू पावर 4 तो है ही. ये समझ में आया. हमने क्या किया, 25 को लिख दिया 5 स्क्वायर. 25 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको हमने प्राइम नंबर 5 की टर्म्स में लिख दिया, और 10 को हमने लिख दिया 5 इंटू 2. क्योंकि 10 भी प्राइम नंबर नहीं था तो हमने इसको भी प्राइम नंबर्स 2 और 5 की टर्म्स में लिख दिया है. नाउ हियर वी हैव 5 एज द बेस. यहाँ पर 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, तो इसकी पावर्स का कनेक्शन देख लेते हैं. 2 प्लस 3 होगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये पावर 1 है, इसको माइनस में लेंगे क्योंकि ये डिवीजन में है. देन वी हैव 2 हियर इन द डिनोमिनेटर, और अब t को भी ले लेते हैं. ऊपर 8 है और क्योंकि डिवीजन हो रहा है -4 हो जाएगा. ये क्लियर है. एक्सपोनेंशियल लॉज लगाए हैं हमने और कुछ भी नहीं किया है. यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 2 प्लस 3 हो गई, पावर्स ऐड हो गई, और यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ये -1 हो गया. यहाँ पर 8 -4 कर दिया बिकॉज वी आर डिवाइडिंग. सिंस वी नो a raised to power m into a raised to power n, this is equal to a raised to power m plus n. ये लॉ भी अप्लाई किया है, और a raised to power m upon a raised to power n, this is equal to a raised to power m minus n. ये दोनों लॉज यहाँ पर अप्लाई किए हैं. दिस इज इक्वल टू नाउ 5 raised to power 2 plus 3 is 5 minus 1 it's 4 upon 2 into here we have t raised to power 4. Now 5 raised to power 4, this means 4 times here and then upon 2 and then t raised to power 4. This is 25 into 25, 625 upon 2 t raised to power 4. This is the answer. एक स्टेप तो ये हो सकता है जिस तरह से आप कर सकते हैं. यहाँ पर हमने क्या देखा, 25 और 10 को इस तरह से हमने पहले प्राइम फैक्टर्स या प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट किया और फिर सॉल्व किया. या फिर आप यहाँ से इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं. इस तरह से 25 इंटू 5 क्यूब को आप 125 लिख लीजिए, t रेज टू पावर 8 अपॉन 10
इंटू टी रेज टू पावर 4। अब आप 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, दिस गिव्स अस 5 इंटू 125 अपॉन 2 और t रेज टू पावर 8 माइनस 4 तो करना ही होगा क्योंकि डिवीजन हो रहा है तो एक्सपोनेंट्स माइनस होंगे। नाउ दिस इज 625 अपॉन 2 t रेज टू पावर 4, 8 माइनस 4 इज 4। तो इस तरह से भी वही आंसर आया है, आप देख सकते हैं। यू कैन गो थ्रू बोथ द आंसर्स अगेन, दिस इज द सेम वन एज वी गॉट अर्लियर, दोनों आंसर सेम है। हमने यहाँ से थोड़ा सा अलग किया था, ये दो अलग वेज हो गए। यहाँ पर 25 और 10 को हमने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करके फिर सॉल्व किया एक्सपोनेंशियल लॉज अप्लाई करके, और यहाँ हमने ऐसा नहीं किया, सिंपल हमने डिवीजन कर दिया। यहाँ पर 25 और 10 को 5 से कैंसिल कर दिया और फिर हमें आंसर मिल गया। दोनों सही हैं, आपको जो इजी लगे यू कैन फॉलो दैट केस। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड पार्ट फ्रॉम सेम क्वेश्चन 7, 3 रेज टू पावर माइनस 5 into 10 raised to power minus 5 into 125 upon here 5 raised to power minus 7 into 6 raised to power minus 5। फिर से पहले हम नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, ऊपर 125 ही सही लग रहा है और ये नीचे जो नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाली टर्म्स हैं इनको ऊपर ले आएंगे। 5 रेज टू पावर 7 हो जाएगा, 6 रेज टू पावर 5, और ऐसे ही यहाँ की नेगेटिव एक्सपोनेंट्स वाली टर्म्स नीचे आकर पॉजिटिव हो जाएंगी। क्लियर है? इसके बाद आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से नंबर्स प्राइम फैक्टर्स में नहीं हैं, प्राइम नंबर्स में नहीं हैं। एक तो आप देख सकते हैं ये 6, यहाँ से 10, यहाँ से 125। तो इनको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 7 तो ठीक है क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। 6 को हम ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 3 प्राइम नंबर्स में, एंड होल रेज टू पावर 5। 125 को आप 5 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। 3 रेज टू पावर 5 इज़ ओके क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। 10 नहीं है, दिस कैन बी रिटन एज 2 इंटू 5 होल रेज टू पावर 5। तो जो जो नंबर्स प्राइम नहीं थे उनको हमने प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर दिया है, 6 को, 10 को, 125 को। अब यहाँ से दिस विल बी 5 रेज टू पावर 7, 2 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5, 5 रेज टू पावर 3, ठीक है। यहाँ पर 2 और 3 पर अलग अलग 5 पावर लिख दी। 3 रेज टू पावर 5 इंटू 2 रेज टू पावर 5 इंटू 5 रेज टू पावर 5। यहाँ पर 3 रेज टू पावर 5 तो ओके है, 2 पर 5 अलग से पावर लिख दी, 5 पर 5 अलग से पावर लिख दी। और ऐसा करने से अब आप देखिए कैसे सिंप्लीफाई हो रहा है। 2 रेज टू पावर 5, 2 रेज टू पावर 5 ये कैंसिल हो गए। 3 रेज टू पावर 5, 3 रेज टू पावर 5 कैंसिल हो गए, और हमारे पास क्या बच गया, 5 रेज टू पावर 7 इंटू 5 रेज टू पावर 3 अपॉन 5 रेज टू पावर 5। यहाँ से हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे। 5 रेज टू पावर 7 प्लस 3 हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, और आगे माइनस 5 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिवीजन हो रहा है। तो जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं टर्म्स उनके एक्सपोनेंट्स तो प्लस हो रहे हैं, और जो डिवीजन में है टर्म उसका एक्सपोनेंट माइनस हो रहा है। फ्रॉम हियर वी गेट इट इक्वल टू 5 raised to power 7 plus 3 is 10 minus 5. This is equal to 5 raised to power 5. And this is the answer. You can also find it by solving. Multiply it 5 times. ये हो गया 5 5 is a 25. 25. So here 25 square is 625 into 5. Multiply 5 5 is a 25. 2 carried. Here 12. 1 carried. 3125. This is the final answer. एक बार फिर से इसको देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर ये एक्सप्रेशन था, स्टार्टिंग में हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव किया, जो डिनोमिनेटर में थे वो ऊपर आकर न्यूमरेटर में पॉजिटिव एक्सपोनेंट की टर्म्स हो गई, और जो ऊपर नेगेटिव एक्सपोनेंट्स की टर्म्स थी वो डिनोमिनेटर में आके पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स हो गए। और ऐसे में फिर हमने जो नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं हैं 6, 125 और 10 उनको प्राइम फैक्टर्स में कन्वर्ट करके लिखा, और ऐसे में फिर हमने यहाँ पर ये 2 इंटू 3 होल रेज टू पावर 5 है, तो यहाँ पर सभी इंडिविजुअल नंबर्स की अलग अलग एक्सपोनेंट लगाया, और सिंप्लीफाई करने पे हमने देखा कुछ टर्म्स कैंसिल हो गई और ये बच गया। फिर ऐसे में जो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही थी विद सेम बेस उनके एक्सपोनेंट्स प्लस कर दिए। विद सेम बेस वी हैव वन टर्म इन डिवीजन, तो उसके एक्सपोनेंट माइनस कर दिया। दिस गिव्स अस द फाइनल आंसर।
I hope it's clear. With this, we complete exercise 12.1. I hope all these questions are very much clear. You can also create your own questions and have fun. Bye for now.